Hello students, dual rule in Bengal. After the Battle of Buxar, the English company signed the Treaty of Allahabad with Mughal Emperor Shah Alam. He handed over the rights of Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the company. With these rights, the company had control over the total revenue of Bengal. The Nawab of Bengal, Najmuddullah, handed over the rights of Nizamat to the company, but the company was not ready to bear such onerous responsibilities. The company wanted its control only over treasury and army. Robert Clive was the governor of Bengal. He knew it well that company was not efficient enough to carry Diwani and Nizamat responsibilities. Clive was diplomatic, so he left the Nizamat to Nawab of Bengal and took Diwani rights in his hands. Nizamat means to govern, to maintain peace and protection from outer forces. The Faujdari work remained with the Nawab of Bengal. The company appointed Raza Khan as the Naib Diwan of Bengal and Sitab Rai was entrusted the same task in Bihar. The expenses of Nizamat, maintenance of the Nawab of Bengal and pension to Mughal emperor were paid by the amount of collected as revenue, and the remaining money was deposited in the treasury of company. Thus, the powers of Bengal was divided between company and Nawab. This system was known as dual rule system. So, there were some demerits of the dual rule system. Here are mentioned demerits of dual governance. The real control of Bengal lay in company's hand, but in reality, it was free from all liabilities. Nawab was the ruler of Bengal, but his exchequer was empty and he was powerless. The company was not responsible for security and governance despite having control over treasury and army. Consequently, the dual rule of Bengal created chaos in the state. The dual rule in Bengal damaged agriculture, industry and trade of Bengal. The common man became the victim of companies' atrocities. There was chaos all over Bengal. The company appointed Warren Hastings as governor of Bengal in 1772. Soon after taking charge, Hastings abolished the dual rule system and took the rights of Nizamat and Diwani in his hands. The Nawab of Bengal had nothing to do now except getting pension. So स्टूडेंट्स डुअल रूल सिस्टम का अर्थ था कि जो शासन रहेगा, प्रशासन रहेगा, वो नवाब के पास भी रहेगा और कंपनी के पास भी रहेगा. तो इस तरह से बक्सर के युद्ध के बाद जो शाह आलम था उसने इलाहाबाद की संधि कर ली और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी के जो अधिकार थे वो कंपनी को मिल गए. नवाब ने कंपनी को सिर्फ पूरा कर वसूलने वाले अधिकार ही नहीं दिए थे, साथ साथ वह ये भी चाहता था कि निजामत के अधिकार भी कंपनी के पास हों. लेकिन कंपनी इतना बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे और वो उस समय का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, तो वह जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वह दीवानी और निजामत दोनों देख सके. निजामत क्या था? निजामत ये था कि जो स्टेट है वहां पर पूरी शांति व्यवस्था भी कायम करनी होगी और साथ में अगर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो उससे भी सुरक्षा करनी होगी. इसलिए उसने यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नवाब के ही पास रहने दी. और इसके बाद उसने जो कर वसूलने वाला था वो राजस्व का जो हिस्सा था वो उसने अपने पास रखा. धीरे धीरे जब नायब दीवान सिताब राय को बिहार का और नायब दीवान रजा खां को बंगाल का उन्होंने नायब दीवान घोषित कर दिया. इसके बाद जब राजस्व कंपनी वसूल रही थी तो जो खर्चे थे वो नवाब को मेंटेन करने में बहुत मुश्किल आ रही थी. कंपनी क्या करती थी कि जो
जो खर्च होते थे, नवाब का खर्च है, मुगल सम्राट को पेंशन देने का है, ये सारा होने के बाद जितना भी बचता था पैसा, जो कोष बचता था, वो अपने उसमें जमा कर लेती, अपने कोष में वो जमा कर लेती थी कंपनी। तो नवाब इस तरह से पूरी तरह से मतलब कमजोर पड़ गया, ट्रेजरी के मामले में भी कमजोर पड़ गया और शक्तियों के मामले में भी कमजोर पड़ गया। फिर उसके बाद इसे ही कहा जाता है ड्यूल रूल सिस्टम। बंगाल में यह ड्यूल रूल सिस्टम चला, और जो कि जनता को इससे बहुत दिक्कत हो रही थी, नवाब की स्थिति उसमें बिल्कुल ही डल हो चुकी थी। अब इस रूल्स की कुछ डिमेरिट्स भी थी। तो क्या हुआ, बंगाल की जो रियल में जो पूरी कंट्रोल था वो कंपनी के पास था, नवाब के पास अब कुछ भी नहीं, खाली खजाना बचा था और कुछ भी, वो पावरलेस ही हो चुका था। तो उसके बाद जो कंपनी की जो सिक्योरिटी थी और जो गवर्नेंस थी, वो सारा आर्मी और ट्रेजरी पर ही कंट्रोल वो चाहते थे कि हम पूरा रिस्पॉन्सिबल, हम सिर्फ क्या करें, हम खजाने को कंट्रोल करें और आर्मी को कंट्रोल करें। तो इसके कारण जो ये ड्यूल रूल सिस्टम था, इसने बंगाल को और नवाब को बहुत कष्टों में डाल दिया। फिर इसके बाद व्यापार वगैरह जो थे, एग्रीकल्चर थे, वो सारे धीरे धीरे, इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते गए, और जो आम जनता थी उसको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, और साथ साथ वो अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भी होती जा रही थी, क्योंकि वो कर वगैरह वसूलने में जरा भी रियायत नहीं करते थे, और चारों तरफ हाहाकार मच गया। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, और उसने इस ड्यूल रूल सिस्टम का अंत कर दिया। उसने सारा निजामत भी, दीवानी भी, सारा कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। बंगाल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि वह अंग्रेजों से पेंशन ले सके। Now, Regulating Act 1773. East India Company was an independent trading body. The board of directors managed the entire functioning of the company. This committee appointed and dismissed the staff of the company. The directors of the company formulate foreign policy, trading policy, and maintain the army. After 1757, there was change in company's objectives. It was not only a trading company but had also become an administrating company. The British government had to intervene in the working of the company. British governor had information about the chaotic situation of Bengal, of loot, misgovernance, malpractices of the company, operations of the people of Bengal, and above all the dual rule which had thrown as entire setup in Bengal out of order. The British government resolved to control the activity of company, which was not sound financially despite amazing huge wealth in Bengal. Keeping these factors in view, the British government passed the Regulating Act in 1773. The two main objectives of the act were to remedy the drawback in the company's organization and to rectify the causes of company's misgovernance in India. There were some other reasons that necessitated the passing of Regulating Act. The East India Company was not a trading body anymore but had become a political organization. Significant changes were brought about in their rights and functions. The company had to bear the responsibilities of war and treaty simultaneously. They had to look after judicial, security, and revenue affairs. The political and economic condition of Indian states saw sharp decline during the rule of company. The official of the company indulged in malpractices and corruptions. Considering these glaring shortcomings, the British Parliament passed Regulating Act in 1773 to put a check on the company affairs, and the act was implemented in 1774. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक इंडिपेंडेंट ट्रेड संस्था थी, लेकिन
क्या हुआ कि उनकी जो उनका जो कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, लेकिन जब 1757 के बाद जो कंपनी थी उसका जो मूल कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर था, वो चेंज हो चुका था। अब वो व्यापारिक ना होकर क्या हो चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन चुकी थी हमारे भारत में। और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी वह कंपनी के ये जो कार्य उन लोग कर रहे थे इन सबसे अनजान नहीं थी। वह वो बंगाल की लूट, वहाँ की कानून व्यवस्था, अत्याचारों को की जानकारी, बंगाल में जो उन्होंने ड्यूल सिस्टम किया, वहाँ की व्यवस्था को बर्बाद किया, ये सारी जानकारी ब्रिटिश जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी उनको भी थी। बहुत सारी संपत्ति जमा कर लेने के बाद भी कंपनी को जो था इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सारा अपने कंट्रोल में कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भारत में जो कंपनी है उसको उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद थी उसमें उन्होंने एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने पारित कर दिया। और इसमें दो मेन उसके एक्ट के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, टू रेमेडी द ड्रॉबैक इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन एंड टू रेक्टिफाई द कॉजेज ऑफ कंपनीज मिस गवर्नेंस इन इंडिया। पहला तो ये कि कंपनी के जो दोष हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना, और दूसरा भारत में जो कंपनी के शासन के दोष हैं उनको उनका निराकरण करना, जो उसके संगठन है उनको संगठन की कमियों को दूर करना। ये दो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स उसमें रखे। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं थी हमारे यहाँ, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में वो बन चुकी थी, और उसके जो अधिकार थे उसमें भी परिवर्तन आ चुका था। अब वो युद्ध भी कर सकते थे और संधि भी, वो सारे अपने उनके अंडर कंट्रोल होता था, वो जो चाहे उस वक्त करते थे। उनको ये भी था कि वो पूरा टैक्स रेवेन्यू था, जो पूरा अफेयर्स वो कंट्रोल कर रहे थे, सारा अपने राजकोष में जमा कर रहे थे। तो जो भारत की जो व्यवस्था थी उसमें पूरी तरह से गिरावट आ गई थी। जो हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही जो व्यवस्थाएं थी उनमें वो पूरी डाउन हो चुकी थी। कंपनी के जो वर्कर्स थे वो भ्रष्टाचारी थे, और वो कंपनी के हितों का ध्यान न रख के अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते थे। उन्हें समझ में आया कि हम भारत में अच्छी तरह से लूट खसोट कर सकते हैं, अपना फायदा देख सकते हैं, तो वो इसमें लगे हुए थे। इन्हीं सब बातों पर विचार किया ब्रिटिश संसद ने, और इसके बाद उनको कंट्रोल करने के लिए 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को वहां पर पारित किया, और उसके बाद 1774 में उसको उन्होंने जो था इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। The act provided scientific measures to set up a new administrative framework. Bengal, Madras, and Bombay presidencies were independent, but this act ended their freedom. The governor of Bengal was made the Governor General of Bengal and Madras too. A four-member council was formed to help the Governor General. The Governor General was the Chief of Military and non-military affairs. He had the right to declare wars and sign treaties. The board of directors were to look into the affairs of Governor General and his council. The act also provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta. The officials and employees of the company as per the act were given high salary, but they were prohibited from taking presents, gifts and indulging in personal transactions. अब जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे, उसमें क्या किया गया कि नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था उसे तैयार कर दिया गया। इसमें बंगाल, मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी, अब उसकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको समाप्त कर दिया गया, और बम्बई और मद्रास का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर बम्बई और मद्रास का भी बना दिया गया। इस तरह से वो तीन जगहों का, और उसने एक काउंसिल बनाई, और उस काउंसिल में जो सैनिक और असैनिक दोनों ही शासन का वो स्वामी बनाया गया। उसे युद्ध और संधि के अधिकार दे दिए गए कि किससे कब युद्ध करना है, किससे कब संधि करना है, ये सारे उसको अधिकार, राइट्स उसको दे दिए गए। गवर्नर जनरल और उसके जो काउंसिल थे उन्होंने
एक कंट्रोल कर लिया, अपना सारा जो पूरा मंडल था उस पर कंट्रोल करके रखा उन्होंने। ऑफिशियल्स जो जितने भी वर्क्स थे उन सब पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और इस एक्ट में जो था कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई।